Fine, we will start the class. So just confirm whether I'm audible or not. My screen is visible to all of you. Is it visible and I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, thank you. So basically what today we are going to start this class 10th polity, right? The first, I think one of the most important chapter in class 10 polity is what federalism, right? And power sharing, the first chapter is not that important, but anyhow, we will see that. So federalism will be the very important topic as far as your NTS exam is concerned, and the last two topics of class 9th. So these three will carry huge weightage, okay, in your exam, right? So let's start with the power sharing part, right? Okay. So the very first, if you will see the NCERT, this chapter starts with this particular thing. I have a simple equation in mind. Sharing power is equals to dividing power. That is weakening the country. Why do we start by talking this, right? Do you think that sharing power is dividing power? Is it true? No, What do you think? It's not true, right? So definitely sharing power is not dividing power. Yes, Harshit, correct. It's not. So this is not true. Okay, and we will see. Actually, NCERT gives two example, right? And I have taken one more example for you guys because that example is so much in news nowadays. Okay, तो पहले वही देखते हैं. अगर तुम इस 12th of August, right? If I'm not wrong, yes. August 12, 2021 का पेपर उठाओ, right? So you will find such kind of headings in the paper, right? And there it is written that Afghan president offers Taliban power sharing deal to end violence, right? Okay. Even this is the, the heading in Hindu, right? And what they are saying that Kabul offers Taliban power sharing to end what? Violence, right? So the Kabul government, at one point of time they were ready. Probably they were, they were already accepted this fact that anyhow we are going to lose this particular war. So let's share the power, right? Okay. And at the end क्या हुआ फिर अशरफ गनी साहब वहां से निकल गए. Okay. So that is what you see what is happening in Afghanistan. There are different ethnicities. Okay. पश्तून है जैसे तालिबान जो है दे बिलोंग्स टू पश्तून मेजोरिटी ऑफ द तालिबान दे बिलोंग टू व्हाट पश्तून आई मीन उनकी जो एथनिसिटी है दैट इज व्हाट पश्तून राइट. तो वहां पे ताजिक्स भी हैं और उनके बीच अगर सपोज जस्ट इमेजिन कि अगर पावर शेयरिंग हो जाती राइट तो शायद इतना कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता आज की डेट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है राइट. So all these conflict which is going on from last many years, you can say probably last 20 years or more than that even you can say, right? जब तालिबान पावर में आया around 93, 94 के आसपास, right? So that means you see from past many years the conflict is going on because the different ethnic community they are not ready to share the power among themselves, right? Okay. And who is suffering? So Afghanistan as a nation is suffering, right? Okay. Just I was going through a data और बहुत ही interesting सा data I was just looking at कि अमेरिका ने कितने spend किए इस अफगानिस्तान वॉर पे 2000 मतलब last 20 years में. So you will be shocked, to know this particular fact that the Americans approximately they spent $2 trillion. 2 trillion. What I'm saying, see, $2 trillion. और अगर तुम अफगानिस्तान का पॉपुलेशन देखो राइट इफ यू गो एंड सी द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान राइट इट्स नियरली 3 करोड़ 28 लाख 3 करोड़ 28 लाख के आसपास राइट. ठीक है ना. So now if you divide this particular amount among these 3 crore 28 lakh people, right? Okay. Per person, every person in Afghanistan, irrespective of their age, they will get $60,000, right? And what is this? This is $60,000 in last 20 years. So 20 years, last 20 years में अमेरिकन्स ने जितना स्पेंड किया अफगानिस्तान पे अगर वो पैसा हर एक अफगानिस्तान को दिया जाए राइट सो दे विल गेट व्हाट $60,000 राइट. एंड इफ यू विल गो एंड इफ यू विल चेक द डाटा राइट यूएस में जो पर कैपिटा इनकम है पर कैपिटा ऑफ कोर्स इन 1 ईयर
that income is less than 60,000. It's around 59,000, right? So you see what the conflict and who actually suffered, right? Who got benefited, I'm not going to discuss that, but who actually suffered? The people of Afghanistan. Why? Because they were not ready to share the power, right? Okay. So the NCRT is also giving two examples. One example is of what basically, sorry, wait, yeah. So one example is what of Belgium. Okay. एक बार इसको देख लेना, इसमें मैंने बेसिकली यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है कि वहाँ पे कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, राइट? नाउ यू सी हियर यू विल फाइंड दैट पश्तून, maximum number of Afghanis are they belong to this particular ethnic group, Pashtuns, and Talibans, I mean they are also Pashtun majorly, right? So if you see Taliban, they are what? Primarily Pashtuns, right? And probably you have heard about this name also if you are following the news, right, related to Afghanistan, Amrullah Saleh, right? So Amrullah Saleh is basically what? He belongs to basically, he is Tajik, the second most populous ethnic group in what? Afghanistan. So you see the the problem that is going on in Afghanistan and Taliban and this Amrullah Saleh, probably you have heard about Panjshir Valley, right? तो यहाँ पे जो majority लोग हैं, they are what? Tajiks हैं वो, ठीक है? And they are not ready to share the power, so they are fighting each other, right? And ultimately the Afghan peoples are what? Suffering. Anyway, so this is what the at present time basically you can see that if you don't go for power sharing, how much a nation has to pay for that, right? Such type of conflict can change the fate of nation, right? Okay. So NCRT has given two examples. Quickly we will discuss these two examples. आपको ये पता होना चाहिए, अफगानिस्तान के बारे में पता हो ना हो, बेल्जियम के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, because that is given in NCRT, right? Okay. So बेल्जियम में क्या देखो, same more or less बेल्जियम में कुछ ऐसा है कि अगर तुम ओवरऑल देखो, right? If you find overall there are what? 59% Dutch speaking people, right? That's a Flemish region. आपको region याद रहना चाहिए, Flemish, and that is what Walloon region. So this what Flemish is what Dutch speaking, right? Okay, this is what yellow region, and this Walloon is what basically French speaking, right? तो 59% overall अगर तुम देखो बेल्जियम में तो 59% are Dutch speaking, 40% are what? French speaking. That means what? Dutch are more, in numbers overall than French, right? That means they are in majority. Dutch, they are in majority in Belgium. But if you look at the capital, Brussels, right? Brussels में अगर देखो, so French are in what? Overwhelming majority, right? So they are what? 80%. Okay. And what about Dutch? So they are what? 20%. ठीक है. So अगर overall देखो तो Dutch majority में है, and if you see the Brussels जो उनकी कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है, वहां पे जो है French, and they are in what? Overwhelming majority, right? तो वहां पे भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, और इनफैक्ट चल ही रहे थे कॉन्फ्लिक्ट, राइट? बट व्हाट दे डिड, they didn't take arms against each other, right? And they fought the war, right? I mean, what is happening in Afghanistan right now? Okay, they sat and they basically what? Found a solution, right? So they came with a constitution. Conflict रहा, right? 70s के आसपास से 93 तक, और 93 में बेसिकली what? जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब post 93 they are not subordinate to what? Central government. So you see state government, they are not subordinate to what? Central government post 1993, right? Okay. तो वहां पे लोगों ने बात की, जो डच स्पीकिंग लोग थे और फ्रेंच, उन्होंने बात की और उन्होंने बातचीत से एक सॉल्यूशन निकाला, राइट? दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, राइट? बट फाइन, इट इज वर्किंग फॉर बेल्जियम, राइट? सो इट्स गुड. तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दो डच आर इन मेजॉरिटी एंड फ्रेंच आर इन माइनॉरिटी, राइट? There will be what? Equal representation from Dutch and what? French at central government, right? Central government level. State government, they are not subordinate to central government, right? Okay. And the third one, what? Brussels. Earlier it was, before 93 it was, right? Post 93, the state government is not subordinate to what? Central government, right? So we will see also later on that शुरू में Belgium unitary government थी, and then they became what? Federal government, okay? Post 93. एंड ब्रुसेल्स में फिर क्या है? ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट है, राइट? और अगर ब्रुसेल्स को देखो तो ब्रुसेल्स में कौन मेजोरिटी में? तुम्हारे फ्रेंच मेजोरिटी में. बट देयर आल्सो वहां की जो गवर्नमेंट है वहां पे भी बोथ डच एंड फ्रेंच हैज व्हाट? इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इट्स काइंड ऑफ व्हाट? अग्रीमेंट कि ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच को फायदा हो रहा है बिकॉज डच आर इन मेजोरिटी, और जो ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट है उनको डच को फायदा हो रहा है बिकॉज
French are in majority and Dutch there are in what? Minority, right? So it's a kind of sensible agreement between these two, community, the one which speaks Dutch and the another one is what? Speaks French, right? So good for, Belgium, right? And Brussels, it's a very important city if you see. EU का जो हेडक्वार्टर है, that is what in Brussels. Even NATO के बारे में तुमने सुना होगा, तो NATO का भी जो हेडक्वार्टर है, that is also in what? Brussels. NATO is so much in news, because of this Afghanistan issue. तो NATO और EU दोनों का जो हेडक्वार्टर है, that is one Brussels. Just remember, right? Okay. So this is what about Belgium. So Belgium में क्या वहां भी कन्फ्लिक्ट है, लेकिन वहां पे लोगों ने एक दूसरे से बात की और उसका सॉल्यूशन निकाला. Let's go to श्रीलंका, right? जहां पे ऐसा नहीं हुआ, right? Okay. So this was the accommodation in Belgium. Even Belgium में एक community government भी है, right? Okay. Community government भी है जहां पे हर एक community का representation है, right? And कोई भी एक single community, they cannot make decision what? Unilaterally. So Belgium में community government, just to remember, Belgium में community government भी है, right? ठीक है? Okay. Now let's see Sri Lanka. Sri Lanka Britishers की एक कॉलोनी थी, right? Till 1948. They got independence in 1948, right? श्रीलंका का आप देखते हैं हम लोग, तो वहां पे जो 74% people है, they speaks what? Sinhala, right? And 18% are what? They are Tamil speaking people, right? तो जो सिंहला बोलते हैं, they are mostly Buddhist, right? Okay. और जो 18% जो तुम्हारे तमिल है, right? They are Hindu and Muslim. उस 18% तमिल में भी अगर तुम देखो तो 13% श्रीलंकन तमिल है and rest are what? Your Indian Tamil, right? So there was conflict between Sinhala community and what? Tamil community. Conflict generate कब हुआ? That generated in what? 1956. 1956 में क्या हुआ? In Sri Lanka, there was an act that was passed by the parliament, Official Language Act, right? ठीक है ना? जिसमें basically Sinhala को क्या किया गया? Before 1956, English was their official language, and then Sinhala became the official language. Now Sinhala अगर official language बन जाए, तो उससे problems क्या होंगे? Just imagine, I'm giving you one example, right? Suppose tomorrow in India, if we say that Hindi is basically what? The official language, right? जो भी official work होगा, that will be what? In Hindi, right? Now just imagine the plight of the people who are living in southern state, right? Because they don't know Hindi. अब अगर गवर्नमेंट में जो भी ऑफिशियल वर्क है, अगर वो हिंदी में हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट होगी, दैट वो भी ऐसी ही होगी कि जो भी लोग हमारी गवर्नमेंट में आए, हमारे सिस्टम में आए, उनको हिंदी अच्छे से आना चाहिए, राइट? सो दैट मीन्स फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल देयर विल बी एन एडवांटेज, राइट? देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज उनकी हिंदी तो बचपन से अच्छी होगी. और जो लोग साउथ के हैं, या फिर जो लोग सपोज सम पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, राइट? ओके, असमी, Nagaland, right? Or even West Bengal, you say, right? Okay. उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, because they will have to what? Learn Hindi, right? तो एक तरह से बोलो, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट होगा, वहां के लोगों को, वहां के जो इंडियंस हैं, उनको एक इनहेरेंट बेनिफिट मिलेगा, जस्ट बिकॉज हिंदी इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? इन द रिक्रूटमेंट, जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, राइट? ओके. सो द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन व्हाट देयर. यू सी इन श्रीलंका व्हाट वाज हैपनिंग बेसिकली व्हाट? कि सिंहला कम्युनिटी ने क्या किया? उन्होंने बोला कि अब से केवल सिंहला लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट? दैट मींस व्हाट? कि जो तमिल होंगे, जो तमिल स्पीकिंग लोग होंगे, उनके लिए तो प्रॉब्लम है, राइट? देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? फॉर तमिल स्पीकिंग पीपल, राइट? सो दैट मींस व्हाट? देयर विल बी लेस अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, एंड इवन दैट रिफ्लेक्टेड आल्सो. जो गवर्नमेंट जॉब में जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे, उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, दैट डिक्रीज्ड, राइट? सो दैट रिजल्टेड इन व्हाट? सिविल वॉर. आई एम श्योर तुम लोगों ने श्योर एलटीटी का नाम सुना होगा, ठीक है ना? एलटीटी का नाम सुना है किसी ने? एलटीटी, anybody knows the full form of LTT? Sir, Liberation Tiger Tamil Elam. Yes, Liberation Tigers. Excellent बच्चा, हर्षित एंड समृद्धि. Yeah, so it is what? Liberation Tigers of Tamil Elam. In fact, अगर अभी देखो, एक फैमिली मैन करके टीवी सीरीज आई है, अगर तुम लोगों ने देखा हो, राइट? तो उसका जो सीजन 2 आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो उसमें भी उन्होंने एक्चुअली थोड़ा बहुत वहां का दिखाया है, तमिल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, राइट? ठीक है. इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल मूवीज आल्सो, ओके, ऑन दैट कॉन्फ्लिक्ट, राइट? सो एक प्रभाकरन जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक्चुअली, राइट? एंड
pro LTT sentiment was there a lot in Tamil Nadu, right? तो बहुत ज्यादा प्रो एलटीटी सेंटिमेंट थे तमिलनाडु में, राइट? तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी श्रीलंका को लेके, दैट वाज वेरी मच अफेक्टेड इन दीस टाइम्स, राइट? ओके, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट सीला प्रो सीला और इंडियन गवर्नमेंट दे कैन नॉट गो अगेंस्ट एलटीटी. आई मीन राजीव गांधी गवर्नमेंट वेंट, राइट, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, बट एनी हाउ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अफेक्ट पड़ा क्योंकि तमिल तो हमें तमिलनाडु तो दैट इज व्हाट, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो वहां के जो लोगों का जो ओपिनियन है दैट मैटर्स फॉर अस, राइट? ओके, सो जब सीला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया 1956 में, सो देयर वाज ह्यूज कंसेंट अमंग व्हाट तमिल्स, राइट? एंड दैट रिजल्टेड इन व्हाट सिविल वॉर, एंड दैट वेंट फ्रॉम 1983 टू 2009, राइट? सो दिस इज आल्सो टाइम पीरियड यू शुड नो. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, अगर तुम श्रीलंका को देखो और बेल्जियम को देखो, इफ यू कंपेयर दीज टू केसेस, देयर यू विल फाइंड दैट बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग थे, उन्होंने क्या किया, बैठे बात की, राइट, और उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, राइट? बट व्हाट हैपेंड, आई मीन इन श्रीलंका देयर वाज अ, यू नो, आई मीन इट वाज अ ब्लडी वॉर फॉर 26 years, you can say, right? Many people died. I mean, so क्योंकि यहाँ पे these two, I mean majority and minority communities, they were not ready to sit and negotiate, right? In fact, I would blame more to majority community, right? So they would have come forward, right? And they would have sit and जो तमिल्स के जो उनके जो डिमांड्स थे उनको सोचना चाहिए था उनके बारे में भी, राइट? एनीवे, so that is what that happened in Sri Lanka. So power sharing definitely from these three example, the example of Afghanistan, the example of Belgium, and the example of what is Sri Lanka, you can clearly say that yes, power sharing is good. You know, if you don't want conflict in a country, and if a country is a little diverse, right, their power sharing plays a very important role, right? Okay. Now, so this is what the first point. Sharing of power does not always mean weakening the country, right? Sometimes it may create the problem by delaying decisions, right? Means sometimes it may create a problem by delaying decisions which are for the welfare of the people, but many times it creates the possibility of better decision making, right? Okay. तो डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा बोला भी जाता है, राइट, जहाँ पे पावर शेयरिंग है, ऐसा बोला जाता है बेसिकली कि डेमोक्रेसी इज, यू नो, वहाँ पे क्या होता है, या फिर हमने पहले भी बात की होगी इसके बारे में कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में डिले तो है, बट एक जो अच्छी बात है कि कोई गलत डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है. अच्छा डिसीजन आप ले ना पाए या फिर लेने में बहुत टाइम लगे, बट गलत डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है डेमोक्रेसी में, राइट? ठीक है ना? वेयर देयर इज व्हाट पावर शेयरिंग, राइट? नाउ इट ensures that people coming from different sphere have say in the government, right? Okay. It also ensures that maximum people can participate in the government, making decision more democratic. That is what the thumb rule of democracy, right? Okay. And it also is in reducing conflict between different social groups, like conflict in what Belgium, you know, जो नहीं हुआ, और conflict जो श्रीलंका में हुआ या फिर अफगानिस्तान में भी हो रहा है, right? So this is about power sharing. Why power sharing is desirable? So again, same point. It goes because it reduces the possibility of conflict first, and actually what it gives, you know, the voice to even minority also, right? And that's the essence of democracy. So these are the 2 points which you must remember, right? Why power sharing is desirable. Okay. Now इस सेक्शन से क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो there are forms of power sharing, right? Multiple, I mean, there are 4 forms of power sharing जो आपके NCERT में. So we will discuss that. The first one is what? Among different organs of government, right? तो एक पावर शेयरिंग जैसे इस तरह से हो गया कि लेजिस्लेटिव के बारे में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, राइट? एक लॉ बनाते हैं, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशियरी इज व्हाट, they basically what see whether the law is what in Indian context we can say that the law is what according to the principle of Indian constitution or not, right? So and कोई ऐसा नहीं है कि legislative is subordinate to executive or executive is subordinate to judiciary. It is nothing like that, right? Okay. So nobody is subordinate to none. So ऐसा कहीं अगर लिखा हो कि judiciary is subordinate to legislative, no, that's not true. Okay. Or legislative is subordinate to judiciary, no, that is not true. Okay. So that is what horizontal distribution of power. Okay. So that is one thing. Next one is what, even अगर तुम horizontal में भी किसी एक को पकड़ लो, right? Suppose अगर मैं legislative को पकड़ता हूँ, right?
तो इस लेजिस्लेटिव में भी फर्दर देयर आर व्हाट हॉरिजॉन्टल दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल, देयर आर सर्टेन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट। जैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखो, जैसे देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, राइट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, राइट, ठीक है ना, या फिर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ऐसे समझ लो। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाती है। कुछ ऐसे गवर्नमेंट होंगे जहां पे क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, राइट, ठीक है ना। सो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज, राइट, कि अगर मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर इंटरनेशनल दूसरे कंट्री से अगर रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई लॉ बनाना है, राइट, सो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर लॉ विल बी मेड बाय व्हाट, पार्लियामेंट, राइट, ठीक है ना। So that particular law will be made by parliament, right? Because international relations that comes under the purview of central government, right? But if you talk about police, right, ठीक है ना, police they come under what, the purview of state government, right? तो वहां पे अगर कुछ करना हो रिफॉर्म वगैरह, so that means state government will play a very important role. And the third one is what, your panchayat, okay? So these are what vertical division of power, okay? जैसे इवन जुडिशरी में भी देख सकते हो, there are vertical division. सुप्रीम कोर्ट हो गया तुम्हारा, राइट, यू नो, हाई कोर्ट हो गया आपका, राइट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। सो दैट यू कैन से अगेन व्हाट, दिस इज आल्सो व्हाट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। जैसे अभी हम इंडिया में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, ठीक है ना। सो अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो ये तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एंड अ जनरल गवर्नमेंट दैट इज व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, राइट, ठीक है। और इस तरह के जो सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, फेडरल सेटअप, राइट। तो फेडरल सेटअप जो होता है बेसिकली, दैट वी विल सी इन सेकंड चैप्टर, राइट। सो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर टुडे इटसेल्फ ओनली। सो फेडरल सेटअप में हम लोग देखेंगे कि देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। स्टेट गवर्नमेंट इन अ फेडरल सेटअप लाइक इन इंडिया, state government is not subordinate to what, central government. Anyway, we will talk about that federal setup in the next chapter. So this is what, such a government for the entire country is usually called what, federal government, right, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताओ मुझे, बेल्जियम में क्या होगा, और अगर मान लो एक ही गवर्नमेंट हो, राइट, दैट मींस व्हाट, ओनली वन गवर्नमेंट इन एंटायर कंट्री, और अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट है भी, सो दैट इज सबऑर्डिनेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर आ रहा है, दैट पावर इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, ओके। सो दैट पर्टिकुलर सेटअप इज नोन एज व्हाट, यूनिटरी सेटअप कहते हैं। यूनिटरी सेटअप का मतलब क्या हो गया कि एक ही गवर्नमेंट होगा, ठीक है ना, वन गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट, they derive their power from what, central government, right, okay. So that is what unitary setup. Now tell me, you know, looking at these discussion, right, जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा और श्रीलंका का, you see बेल्जियम में कैसा सेटअप होगा, फेडरल होगा या यूनिटरी होगा, बताओ। फेडरल। बेल्जियम में कैसा सेटअप होगा, फेडरल, राइट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी था, स्टेट गवर्नमेंट था। what do you think about श्रीलंका, where they were not ready to share the power, right, and the power was, you know, in the hands of the majority, right, Unitary. so there it's unitary, right. So you see when you go, yes Harshit, right, very much correct. So when you go and when you see Sri Lanka, देखो यहाँ पे government, and you see here the word, what word is written there, unitary, right, ठीक है ना. So the word is what, unitary. But you see Belgium, so Belgium you will see the word federal here, right, okay. So that is what the basic meaning of federal and unitary. ऐसे भी federal को हम लोग काफी डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं बस थोड़ी देर में, okay. These are the last 2 points of this chapter. बहुत छोटा सा चैप्टर है ये तो. Power may be shared among different social groups, like जैसे community government in what, Belgium, okay. Community government in what, Belgium, जिसमें हर कम्युनिटी का अपना एक क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, और एक कम्युनिटी सारा का सारा डिसीजन नहीं ले सकती है, राइट, ठीक है. जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है अगर देखो, सो अफगानिस्तान में एक कम्युनिटी, दैट मींस व्हाट, तालिबान इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, प्रोबेबली पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आज शायद वो लोग अपना गवर्नमेंट अनाउंस भी कर दें, राइट. सो अपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वगैरह कि कौन हेड होंगे वगैरह वगैरह, एनीवे, एंड दे आर व्हाट, पश्तून्स, राइट. सो दैट मींस व्हाट, पश्तून्स
what am you know, they are in majority in Afghanistan, but they are the ruling class in Afghanistan, right? Okay, so that is what you can see, that their one community is deciding the fate of all other community in the country, right? Okay, but that is not in the case of what Belgium. There is a community government, representation from every community is there, and but no one community can decide or take decision what unilaterally, right? Okay, now fourth, power sharing arrangements can also be seen in the way of political parties, right? Like India का example दे सकते हो ये, pressure groups and movements, right? Political parties तो आपको पता है, right? ठीक है, जैसे यूपीए गवर्नमेंट थी, राइट? ओके, तो यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस एंड देयर अलाइज, राइट? लाइक एनडीए गवर्नमेंट है तो बीजेपी एंड देयर अलाइज, राइट? दे आर रूलिंग. व्हाट अबाउट प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? मतलब ये एक वर्ड आ गया, इस पे क्वेश्चन आया था एनटीएससी स्टेज 2 में, राइट? ओके, सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है बेसिकली. प्रेशर ग्रुप आर दोज ग्रुप्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट? पावर. मतलब उनके अपने इंटरेस्ट बस फुलफिल होने चाहिए, मतलब उनको देश पे रूल नहीं करना है, राइट? दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे जस्ट वांट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, राइट? नाउ यू विल से सर एग्जांपल दो, राइट? और कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, जैसे अभी तुम लोग देख रहे होगे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राइट? ठीक है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो जो फार्म बिल आए हैं, राइट? फार्मर्स प्रोटेस्ट, राइट? and that protest is what going on. तो फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक नाम खूब सुनोगे, मिस्टर टिकैत का नाम सुनोगे, राइट? और उनका जब तुम थोड़ा सा प्रोफाइल उनके बारे में थोड़ा सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ यूनियन, राइट? भारतीय किसान यूनियन, बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, राइट? एंड दैट भारतीय किसान यूनियन इज बेसिकली व्हाट यू कैन से दैट इट्स अ प्रेशर ग्रुप that takes care the interest of what your interest of, you can say, the farmers, right? Okay, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा फिक्की का नाम सुना होगा, राइट? फिक्की का, ओके, सो फिक्की इज ऑल्सो व्हाट, जो इंडस्ट्रीज हैं, ओके, उनके कॉमर्स वगैरह उनसे रिलेटेड, बेसिकली व्हाट दे टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ दोज बॉडीज, राइट? ओके, एनीवे, इवन अगर जेएनयू के बारे में थोड़ा सा पढ़ो तो जेएनयू में इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, तो तुम लोग ये नाम सुनोगे, एबीवीपी, राइट? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राइट? दैट इज व्हाट द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी, राइट? एनएसयूआई, दैट इज द स्टूडेंट विंग ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कांग्रेस, राइट? ओके, so these are also what your pressure group. So that means they take care of their interest. उनके अपने ग्रुप्स का जो इंटरेस्ट है उसको वो टेक केयर करते हैं. उनको पावर ग्रैब करने का कोई उनमें वो इंटरेस्ट नहीं है कि दे डोंट वांट टू रूल द कंट्री, राइट? दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बने जिससे उनके इंटरेस्ट सर्व हो सके. दैट इज द बेसिक, यू नो, you can say what the idea behind the existence of pressure groups, right? Now movements मतलब क्या? Like you can say अन्ना हजारे आंदोलन, right? उस टाइम में आप लोग बहुत छोटे होगे, I am sure. If you are in class 11th right now, or sorry, you are in class 10th, right? तो class 10th में आप लोग, तो मेरे ख्याल से आप लोग की एज कितनी होगी? 14, 15, right? तो आज से 10 साल पहले, मतलब 4-5 साल के हो गए, बहुत छोटे हो गए तुम लोग, नहीं? नन्हे से एकदम, ठीक है? तो और उस टाइम में एक आंदोलन चला, अन्ना हजारे आंदोलन, ठीक है ना? जो अभी दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, यू कैन से कि वो अन्ना हजारे आंदोलन की पैदाइश एक तरह से कह सकते हो उनको, ठीक है? सो जो भी ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब हो गए, राइट? ठीक है, या फिर इनफैक्ट किरण बेदी हो गई, राइट? ठीक है, सो दे ऑल गॉट दैट. किरण बेदी तो वैसे पहले से भी फेमस थी, अरविंद केजरीवाल भी थे फेमस, राइट? उससे पहले से, क्योंकि उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, आई थिंक अराउंड 2006 में, राइट? एंड ही वाज एन आईआरएस ऑफिसर आल्सो. बट इतना ज्यादा फेमस, मतलब दैट टाइप ऑफ फेम he got after that particular movement, right? So that movement also, you see, that changed the whole political political system in the country, right? BJP को बहुत फायदा हुआ उससे 2014 के इलेक्शन में, right? Okay, so from that movement, so that means what you can say, all these things play a very important role in a democracy, right? And they also contain certain kind of powers, right? Okay, तो इतना काफी होगा for this chapter. Now we will do some questions. Let's see आप में से कौन पहले आंसर करता है, right? Okay, चलिए पहला क्वेश्चन. Different arguments are usually put forth in favor of and against power sharing.
identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the code given below. Power sharing reduces conflict among different communities, right? देखो एक चीज में, चलो इसको करो पहले, तो तुम करो, उसके बाद मुझे करो पहले. Do this particular question. Daksh is saying A, right? Okay, good. Alish is saying A. Okay, good, good, good. और बाकी लोग फटाफट बताओ. Akhil is saying A, Saurabh is saying A, Disha is saying A, Arbitrariness. Yes. So Arjit, yes. Now see, if this question comes in your exam, how you have to proceed, right? Sometimes you must build up what? This objective approach. शायद अभी तुम लोग 10th में हो इसलिए इतना ज्यादा एग्जाम नहीं देना पड़ रहा, राइट? बट 11th में जाओगे. What is arbitrariness? Okay, I'm coming on that, बच्चा. Arbitrary मतलब, arbitrary power मतलब क्या? You can do anything, right? मतलब तुम्हारे जैसे एक एग्जांपल हो, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू आर लिविंग इन चाइना, राइट? ओके, अब चाइना में जो वहां की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राइट? समटाइम्स दे टेक डिसीजन इवन यू कांट इमेजिन, राइट? ओके, अभी तुम्हें पता है, तुम लोगों ने पता नहीं सुना या नहीं सुना, वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां के बच्चों को, एक सर्टेन एज के कम बच्चों को, वहां पे वो शायद 1 या 1.5 घंटे ही गेम खेल सकते हैं ऑनलाइन. मैं एग्जैक्टली कहीं देख रहा था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं वो आर्टिकल, राइट? बट यू सी मेनी पीपल कैन गो इन फेवर ऑल्सो कि नहीं अच्छा रूल है, राइट? ठीक है, I am not going in that part whether it is good or bad, right? But see, so that is what arbitrary means. What sometimes you can't even find the logic behind that particular decision, right? Okay, and those arbitrary decisions are taken usually by in a country where the democracy doesn't exist. Either it doesn't exist or it exists only on paper, right? Okay, so that is what the meaning of arbitrariness, right? Are you getting, बच्चा? जिन्होंने पूछा था डाउट क्लियर? What is the meaning of arbitrariness? Are you getting this right? Fine. So now see this question. Reduces conflict among different communities. Definitely, right? तो इसका मतलब D ऑप्शन को मैंने हटा दिया. D ऑप्शन हट गया. अब मैं D ऑप्शन देखूंगा ही नहीं, right? ठीक है. Decreases the possibility of arbitrariness. Yes, definitely. ठीक है. अगर मान लो कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट हो, मान लो सिन्हा कम्युनिटी की गवर्नमेंट हो, कल हो के अगर मान लो कि सिन्हा कम्युनिटी 74%, राइट? पॉपुलेशन वाइज दे आर 74%, राइट? नाउ दे आर मेकिंग अ लॉ कि जो सीना बोलेगा वो भी बचपन से, ठीक है ना, जन्म लेते ही जो पहली बार सीना बोलेगा, पहला वर्ड जो माँ बोला होगा वो सीना लैंग्वेज में बोला होगा, राइट? उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा. दैट इज व्हाट आर्बिट्रेरीनेस, राइट? बट दैट इज हेल्पिंग दोस कम्युनिटी, राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट मींस व्हाट कि decreases the possibility of what? Arbitrariness, right? So B is also correct, right? इसका मतलब क्या हो गया? हटाओ इस ऑप्शन को, राइट? तो A B हो गया. अब अगर D अगर आ रहा है दोनों में, D अगर आ रहा है तो D को देखने की जरूरत नहीं है. बस चलो एक बार देख भी लेते हैं. Accommodates diversities, yes, definitely that is true. And F and G भी देख लेते हैं. So F is what promotes people participation in government. That's true. F is true. G undermines the unity of a country. No, it doesn't undermine. Actually, it unites country, right? It unites country. You see what happened in 1971 in Pakistan, right? So before that, it was East Pakistan, West Pakistan, और वहां पे बंगाली पीपल थे. और इनफैक्ट बंगाली पीपल, वहां के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, एंड ही वॉन द इलेक्शन, बट उनको गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने दिया गया. गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने दिया गया तो क्या हुआ? अल्टीमेटली दे लॉस्ट बांग्लादेश, राइट? ओके, सो दे लॉस्ट वन पार्ट. So that means what? It doesn't undermine the unity of country. It actually, empower a country to, become a more unite country. You just imagine अगर इंडिया में अगर इस तरह का हम अगर डाइवर्सिटी को हम लोग accommodate नहीं कर पाए, so India will become 565 countries, right? Okay, there's so much diversity. So C is false. Delay decision making process, right? That's a good, see, you can say a bit, right? Okay, but if such question comes, yes, I agree with you, that's a good question, that it delays decision making process a bit, right? Again, it depends, not always, right? Not always, but it can, because it is written in NCERT. But if you see, if the same question comes in exam, the best possible answer will be what? The best possible answer will be what? Your A. You're getting this point. So in such question, you have to see the best possible answer. Can delays decision making process?
yes, in that case, that particular statement will also be true related to power sharing, right? Okay. You are getting this point? I hope there is no confusion, right? Fine. Next. So answer will be definitely A, right? GB. Okay. Next. 30. Consider the following statement about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. In Belgium, the Dutch-speaking majority people tried to impose their domination on the country French-speaking community. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala-speaking majority. Sorry, saying D, right? Okay, good. Dekhte. The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, and equality. Sorry, saying D, opportunity in education and jobs. And the transformation of Belgium from unitary government to federal one prevented a possible division of the country on linguistic lines, right? Okay, so many of you are saying answer D, excellent, you know, and thanks for the response also, right? So the answer will be B, C, and D. Okay, the transformation of Belgium from unitary to a federal one, right? Post 1993, right? One prevented a possible division of the country on linguistic lines, right? Okay. Now, the Tamil. Somebody is what? Sorry, if you can please mute yourself. The Tamil in Sri Lanka demanded a federal government of power sharing to protect their culture, language, and equality of opportunity in education and jobs, right? Okay. So that was true. Actually, they demanded, but Sinhala community, they were not ready. And because of that, what happened? You know, the war happened. Nowadays, okay, Tamil is also official language in Sri Lanka, right? Even just after 3 years of Official Language Act 1956, right? They started diluting that particular law, right? They started diluting. And after you can say this 2009, this war, right? Now basically you can say that Tamil is also official language. So there are two official languages in Sri Lanka right now, which was not in 1956, Sinhala and Tamil both, right? And in Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance. Yes, they sought, right? So that means what? B, C, and D, all these three are the correct answer, right? Okay. Now, next question. Match list 1 with list 2 forms of government and select the correct answer using the codes. Power shared among different organs of government. Community government, separation of powers, coalition government, federal government. Batao. Power shared among governments at different levels. Daksh is saying C. Let's see. Power shared by different social groups, right? Okay. Sorry, saying C. Good. Power shared by 2 or more political parties. देखो, कम से कम C पार्ट तो तुमको सबको पता है. थर्ड पार्ट, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या होगा? Community government होगा, right? Just I'm giving you an approach, right? How to, yes, Harshit, you are correct. Akhil and many others also said C, right? Good. तो थर्ड का ए होगा तुम्हारा, राइट? अगर थर्ड का ए होगा तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, राइट? जस्ट एलिमिनेट इट, बिकॉज थर्ड यू आर प्रीटी मच श्योर द डिफरेंट सोशल ग्रुप मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, राइट? ओके. नाउ पावर शेयर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट, राइट? लाइक यूपीए, एनडीए, राइट? ओके. सो दैट इज व्हाट? कोलिशन गवर्नमेंट. तो इसका सी होगा. सो फोर्थ का सी होगा. कहां पे फोर्थ का सी है? केवल सी ऑप्शन है, तो डी भी गया. तो आंसर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट? बाकी भी देख लेते हैं. पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट? योर सेपरेशन ऑफ पावर, राइट? ओके. एंड power shared among government at different level, right? So that is what federal government. Anyway, next chapter ही हमारा federalism है, right? देखते हैं. Now the next question. Consider the following two statements on power sharing and select the answer using the codes given below. Power sharing is good for democracy. It helps to reduce the possibility of conflict between social groups. A is true, but B is false. Both A and B are true. Both A and B are true. Sorry is saying B. Harshit, Disha, Urbi, all three are saying B. Alish is saying also B. Sorry is also saying B, right? Sorry Gupta, Akhil. Okay, yes. Daksh, very good. So yes, both A and B, power sharing is good for democracy. We have already seen that, and it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, right? So answer will be what? B, 9 ka B. Okay. Now, this was the question in NTSC stage 2, right? I do not contest elections, but I try to influence the political process. I have a specific policy agenda
I have no interest in seeking political power. Who am I? Bureaucracy, court, pressure group, and media, right? Yes, very much correct, bacha. Good. Arjit, yes. Sorry. Harshit, Daksh, yes. So answer will be what? Yes, Akhil. It will be pressure group, right? Pressure group, they have no interest in what seeking political power, right? Okay. And media के बारे में एक चीज याद रखो, media is what fourth pillar of democracy, right? So they also play a very important fourth pillar of democracy is what? Media, right? Three pillar of democracy तो कह ही सकते हो, right? Executive, judiciary, and legislative, and the fourth pillar is what you can say democracy, right? So this is what the fourth pillar of democracy. Can you explain pressure? Yes, Urvi, sure. देखो pressure group क्या होते हैं basically what? Pressure group. जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें, ठीक है ना? और वो अभी जो डे टू डे में अभी जो चल रहा है खूब न्यूज में, अगर न्यूज आप लोग फॉलो करते हो, राइट? ठीक है. सो in fact I would suggest you must follow the news, right? You are in class 10th, so in my experience, right, अभी कुछ चीजों पे तुम लोग को जरूर वर्क करना चाहिए जो शायद तुम्हें 11th 12th में नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब भी ये काम जरूर करना. जैसे लैंग्वेज पे वर्क करना शुरू करो अभी, राइट? Believe it or not, accept it or not, but English plays a very important role, right, in this country, right? Okay. तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए तुम्हारा. You should work on English, right? You must work on English. थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड पे वर्क कर लो, राइट? एनटीएससी में तुम्हें एप्टीट्यूड से फायदा क्या होगा? तुम लोग बहुत सारे तुम लोग को लगता भी होगा कि क्यों एप्टीट्यूड पढ़ना, 11 12 में तो पढ़ना नहीं है. बट व्हेन यू विल गो इन इंजीनियरिंग, राइट, मोस्ट ऑफ यू विल गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और मेडिकल, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग. व्हेन यू विल गो इन इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट होगा तो उसमें एक पेपर तुम्हारा एप्टीट्यूड का भी रहेगा, राइट? ठीक है ना? आई डोंट नो 5 साल बाद क्या होगा तुम लोगों के साथ, 6 साल बाद किस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा, बट मैं आज की डेट का तो वही मुझे पता है कि आज की डेट में ऐसे ही होता है रिक्रूटमेंट, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट कि दिस इज द टाइम to work on such things, right? Or plus one extracurricular activities, right? So that if you plan after engineering to go abroad, right, that extracurricular activity will help you. Okay. NTSC will play a very important role अगर तुम plan कर रहे हो abroad के लिए. NTSC अगर तुम crack करते हो, one of my friend he has a startup, actually he's working on such things, and I was talking to him, and one of his student actually went to Canada, right? And they are all USA. I'm forgetting the name of the university, but it was a good university, right? And because he cleared NTSC, right? And they gave the weightage of that. So NTSC plays a very important role if you are planning to go abroad for what? Admission. So take it seriously, and it will teach you many things. Okay. The competition always teach many things, right? So pressure group basically क्या देखो? Pressure group, let me give you one example. इट्स व्हाट, जैसे भारतीय किसान यूनियन, ठीक है ना? भारतीय किसान यूनियन, राइट? टिकैत साहब के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, खूब न्यूज में रहते हैं आजकल, राइट? सो ये भारतीय किसान यूनियन, हाँ सुना होगा, सॉरी, यस. सो भारतीय किसान यूनियन बेसिकली क्या है कि दे आर प्रेशर ग्रुप, राइट? सो क्या वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहले मुझे बताओ, आर दे फाइटिंग इलेक्शंस? नो, दे आर नॉट फाइटिंग इलेक्शंस, राइट? ठीक है ना? दे आर नॉट registered political parties, right? Okay. So they are not fighting elections. अगर वो election fight नहीं कर रहे हैं, right? So that means they are not interested in real power, right? ऐसा नहीं है कि टिकैत साहब बोल रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, right? What they are saying actually, right? Whether they are saying right or wrong, that's another matter, right? Leave that aside. We are not discussing the farm bill here, right? But whatever he's saying, just listen to it. He's saying that, see, this farm bill are not, which is basically what now, it's an act, right? Anyway. So these, whatever the provisions are there in that particular act, right, that is not good for the Indian farmers, right? Okay. So that means what? Bharatiya Kisan Union is staging protest across the country, right? Because they are saying this particular act is not in favor, or not, it will, these act or the provision of these act will not be helpful for farmers, Indian farmers, right? So what are actually Bharatiya Kisan Union? So they are basically what? Pressure group. They are not interested in grabbing power, right? What they are interested in, to force government, right, to take decision in the interest of their own people. समझ में आ रही है बात? So that is what pressure group. कि उनको जिन बंदों का ग्रुप है वो, राइट,
सो उनका अपना एक इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को वो क्या करें, सर्व करें. दैट इज व्हाट प्रेशर ग्रुप. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बच्चा, जिसने भी पूछा था ये डाउट? would be yes. Okay, so जैसे there maybe you have heard about trade unions, right? AITUC, All India Trade Union Congress, right? So that is what AITUC trade unions, they are also what pressure group. वो इलेक्शन थोड़ी ना लड़ते हैं, लेकिन वो हड़ताल वगैरह करते हैं, वो मतलब मीडिया में आके अपने पॉइंट्स रखते हैं. जब मीडिया में आओगे और जब अपने पॉइंट्स रखोगे तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चुपचाप बैठे रह सकती है, बिकॉज दोज पॉइंट्स, दोज ओपिनियंस एक्चुअली इन्फ्लुएंस द इलेक्टोर्स, राइट? जो वोट देने वाले हैं, राइट? हम लोग, आम लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं वो ओपिनियंस, राइट? तो गवर्नमेंट चुपचाप बैठ के नहीं रह सकती है, क्योंकि उनको अगले साल फिर मतलब जब भी जाना हो 2024 में भी उनको जाना है इलेक्शन के लिए फिर, राइट? सो पीपल्स, दोज हु आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ दीज व्हाट प्रेशर ग्रुप्स, कम से कम ये लोग इतना मैटर नहीं करते, लेकिन ये इनके बोलने से या फिर इनके प्रोटेस्ट करने से जो एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है लोगों में, राइट, दैट मैटर्स टू द गवर्नमेंट, राइट? सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड द डेमोक्रेसी, राइट? ओके, सो दैट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी. ओके, कि आप कोई भी, अब इसे तुम बोलोगे कि सर इससे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब many people will say those who are in favor of what these act. That's why I said ना कि डेमोक्रेसी में क्या होगा, डेमोक्रेसी में आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो. सही डिसीजन लेने में टाइम लगे, बट गलत डिसीजन लेना ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? ओके, सो दैट्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. एनीवे, सो दैट इज व्हाट प्रेशर ग्रुप, बस इतना ध्यान में रखो और ये क्वेश्चन कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट, फॉर यू. चलिए नेक्स्ट चैप्टर, फेडरलिज्म. नाउ इफ आई से वन चैप्टर, two chapters, right? Two, yeah, in fact, agar 3 chapters, which is the most important for your NTC exam. This is one, and the last 2 chapter of class 9th. Very important. You will definitely find many questions from these 3 sections only, right? After this 10th में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, right? So definitely, I mean, hardly few 1 or 2 more lectures, and you will be able to cover what? Polity. Polity will be over, right? Okay. So federalism basically क्या है? Let's see. तो इस फेडरलिज्म में देखो, यहाँ पे अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ओवरव्यू में ही लिखता है बेसिकली व्हाट, राइट, व्हाट दे राइट कि वी हैव सीन इन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, राइट? लास्ट में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन. तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में हमने देखा था दे आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट? लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट? सो दैट इज व्हाट फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म में क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है आपका, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना? So they are, that is what federalism you can say, or that you can say a federal setup, right? So India is a federal country or not? Is India a federal country? Yes, sir. Yes, sir. Yes, India is a federal country, right? अच्छा, फेडरलिज्म वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. यस अर्जित, यू आर करेक्ट, राइट? India is a federal country, right? It's not mentioned. Yes. Federalism word is not mentioned in Indian constitution, right? Even you see article 1, right? It's what India, that is Bharat. ठीक है ना? तो 2 नाम है, क्योंकि नाम पे भी एक वो नहीं बन पाया था, जो एक ओपिनियन, सबका एक ओपिनियन नहीं बन पाया था, राइट? यूनिलैटरल डिसीजन नहीं आ पाया था, कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे, कुछ लोग भारत के फेवर में, लाइक दैट, राइट? Anyway, so that's why the constitution starts India, that is Bharat, right? Okay, and that is union of states. ठीक है ना? यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो फेडरलिज्म वर्ड जो है यू विल नॉट फाइंड इन व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. सो फेडरलिज्म इज नॉट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरलिज्म वर्ड, मतलब मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? ऑफ कोर्स एसेंस ऑफ फेडरलिज्म इज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. You will find यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रोविजंस है, राइट? ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज द एसेंस ऑफ व्हाट फेडरलिज्म, यू कैन से. चलो, नाउ यू सी दीज आर द कंट्रीज, राइट? ओके, दे आर व्हाट, योर जो ग्रीन में है तुम्हारे, दैट इज व्हाट फेडरल कंट्रीज, राइट? फेडरल, ठीक है. और हमारे जो पड़ोसी साहब है यहाँ पे देखो, श्रीलंका ब्लू में है, सो दैट इज व्हाट, योर यूनिटरी, राइट? यूनिटरी एंड फेडरल में क्या आंसर दे रहा हूं? यूनिटरी एंड फेडरल में द डिफरेंस इज बेसिकली व्हाट?
फेडरल में देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है वहां पे, उसी को फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, राइट? इट्स मेंशन्ड इन द नोट्स, डोंट वरी. सेकंड इज व्हाट योर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिसन, state government and central government, state government is not subordinate to central government. No, that is not like that. ठीक है ना? इसलिए याद करो बेल्जियम में post 93 basically when state government came out of the purview of what central government, right? ठीक है ना? So that means what? That particular country, Belgium, became what? From unitary setup. So it jumped to what? Your federal setup, right? Okay. So that means here state government is not under the central government. Both derive the power from constitution, right? But that is not the case of unitary. Unitary में अगर कोई बोले कि क्या state government होगा ही नहीं, no, it's not true. State government हो सकता है, right? So unitary में central government तो होगा ही. अगर state government if exist, right? If state government exist, नहीं भी हो सकता है. If exist, it works under central government. ठीक है ना? It works under what? Central government. So it is subordinate to central government, right? Unlike in the case of federal, state government is not subordinate to what? Central government. So this is the basic difference, right? Federalism. Okay. Now, centralized power. Yes, you can say that is what in unitary. Yes, the power is what? Centralized. Okay. Now see, unitary government definition. एक बार पढ़ते हैं, right? As I said, this is very important chapter, right, for your NTS exam. A unitary government is one in which all the powers are vested in the national government, central government, and the regional government, if at all exist, derive their authority from the national government, right? Okay, so that is what is unitary. A federal government is one which powers are divided between national government and the regional government by the constitution. Okay, by the constitution. The national government, that means both the government derive their power from what? Constitution. That is what the case of India you see. Central government and state government, both they derive their power from what? Your constitution, Indian constitution. The national government is also known as federal or central or union government, and regional government is known as what? The state government, right? Okay. So that is what the basic difference. I hope that is what clear to all of you. Now, what is federalism, right? Federalism का क्या मतलब है? देखो, federalism का मतलब है basically simple सा कि we have what? Federalism का मतलब है we have a vertical devolution of power, right, among government. So one is what your central, one is what your state, right? ठीक है. Okay. जैसे यहाँ पे देखो, this is what written here कि यहाँ से पढ़ते हैं एक बार. Regional governments existed in Belgium what earlier also. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. It was earlier case when Belgium was unitary. The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers, right? That were no longer dependent on the central government, and thus Belgium shifted from a unitary to federal setup, right, in 1993, right? But Sri Lanka, no, Sri Lanka is what? Unitary. Okay. No. There's certain difference between federal and unitary. You are not supposed to remember this unitary part. आपको जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया वैसे, right? But this is not important, और इस पे ज्यादा अगर नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एक बार बस हम लोग फेडरल सेटअप का हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है ना? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट? फेडरल सेटअप में हमारे पास क्या है? दे आर डुअल गवर्नमेंट, राइट? डुअल गवर्नमेंट मींस व्हाट? वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वन इज व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट, राइट? फर्स्ट, written constitution must. For federal setup, written constitution is must, right? So constitution must be written, okay, so that power between the state and the center is clearly demarcated. Otherwise the possibility is what? Possibility of conflict will be there, right? And that will actually, that will, you know, or that will ultimately undermine the unity of the country, right? Okay, so that means there is a written constitution.
the power among, I mean, the power distribution among the center and the state is clearly demarcated. Is it demarcated in our constitution? Yes, it is. We will talk about that also. Schedule 7 of Indian constitution, right? Now, third point. Division of powers between the national and regional government, right? Supremacy of the constitution, right? So here the supremacy is what? Constitution. Constitution is supreme, from where these two governments are what? Deriving their power, right? Rigid constitution. Now, why rigid constitution? Okay, Indian constitution is rigid or Indian constitution is what? Flexible. What do you think? I mean, is it difficult to amend? Flexible. What do you think? Any other? Flexible, not wrong, right? और कोई इस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहोगे? Is it rigid or flexible? Obviously, it is not as rigid as what? US Constitution. US Constitution को amend करना, it's very difficult, right? It's very difficult, right? But Indian Constitution को amend करना, अगर मान लो, चलो सपोज अगर स्टेट बनाना हो, एक नया स्टेट बनाना हो इंडिया में, राइट? तो स्टेट का परमिशन जरूरी है? Yes or no? Just type yes or no. Is it required? What I'm asking you got the point. If suppose पार्लियामेंट अगर कोई स्टेट बनाना चाहती है, नया स्टेट, राइट? ठीक है ना, नया स्टेट बनाना चाह रही है, जैसे तेलंगाना, राइट? तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना कब बना था? 2014, राइट? उससे पहले 2000 में झारखंड बना था। हाँ, ये क्वेश्चन याद रखना तुम लोग के लिए बहुत, स्टेज 1 में ये क्वेश्चन आया है, स्टेज 1 में ये क्वेश्चन आया है। उत्तराखंड कब बना था? क्योंकि तुम लोग यूपी वाले हो, राइट? पूछ सकते हैं उत्तराखंड कब बना था? 2009। ना 9 नहीं रे बच्चा, 9 नहीं ना, 9 नहीं बच्चा। और कोई? उत्तराखंड कब बना था? 2000। यस, वेरी मच करेक्ट बच्चा। अखिल ने बोला या फिर किसने? दक्ष या अखिल? सर मैं देख नहीं पाया, सॉरी। सो अखिल, ओके अखिल, यस वेरी मच करेक्ट। और 2 स्टेट बने थे 2000 में, एक झारखंड भी बना था आपका, राइट? पड़ोसी ही आपका, राइट? और एक आपका बना था छत्तीसगढ़, राइट? ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपी से डिवाइड होकर बना था। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेज 1 एग्जाम। स्टेज 2 में ये सब मतलब ऐसा नहीं आया कि उत्तराखंड अगर पूछेंगे तो मेरे ख्याल से तीनों को मिला देंगे, राइट? एनीवे, सो दैट इज व्हाट। तो अगर तेलंगाना मान लो बनाना था, सेंट्रल पार्लियामेंट को तेलंगाना बनाना था, राइट? तो उन्होंने पूछा होगा स्टेट से, सारे स्टेट से जा जाके, हाँ बिहार अग्रीड और नॉट? नो, नहीं बनेगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश अग्रीड और नॉट? आंध्र प्रदेश ने कहा नहीं बनेगा तेलंगाना। तो ऐसा कुछ है। देयर यू विल अंडरस्टैंड उर्वी सेइंग नो। एक्सीलेंट बच्चा। इट्स नॉट। Yes, Disha is saying no, Alice is saying no, right? Very much. So you understand this, that Indian constitution is, you can say neither rigid nor flexible. So it's in midway. ठीक है ना? Midway मतलब क्या? कि certain provisions जो फेडरल सेटअप के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, राइट? फेडरल सेटअप के रिलेटेड प्रोविजन मतलब जैसे शेड्यूल 7 हो गया। वी विल टॉक अबाउट शेड्यूल 7। व्हाट इज शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 को अगर तुम्हें अमेंड करना हो, शेड्यूल 7 को, दैट्स नॉट इजी, ठीक है ना? दैट्स नॉट इजी, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड देयर द ओपिनियन ऑफ स्टेट विल आल्सो मैटर, राइट? अगर जैसे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, राइट? अमेंडमेंट इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, राइट? नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, राइट? मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इट डिपेंड्स केस टू केस। इन सम केस इट इज व्हाट अ लिटिल रिजिड, राइट? इन सम केस इट इज व्हाट फ्लेक्सिबल, राइट? तो कुछ केसेस में ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, मतलब कुछ केसेस में पार्लियामेंट को ठीक ठाक पावर दिए गए हैं, राइट? ठीक है, फ्लेक्सी रह गया और बल चला गया। सो दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबल, राइट? सो नीदर रिजिड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर तुमको कोई स्टेट बनाना हो पार्लियामेंट को, राइट? एंड यू विल लाफ दैट इसके लिए इवन
अच्छा, स्टेट बनाने के लिए तुम्हें क्या लगता है, कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की होगी या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, राइट? सिंपल मेजोरिटी समझते हो, मतलब हाफ, सिंपल, सिंपल मेजोरिटी, इट्स special, no, that is the case. I'm saying it is what simple majority, even it is not a special majority. Look at this, what you will say, is it, I mean, that means what, certain amendments are what, they are not rigid, they are what, flexible. So formation of a state के लिए you need what, simple majority, simple majority, आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, राइट? ठीक है ना? बट अगर मान लो तुम्हें, तो दैट मीन्स व्हाट, दिस यू कैन से व्हाट, दिस इज व्हाट, लाइक ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक एग्जांपल हो गया, राइट? अगर रिजिड का, अच्छा, या फिर इसको नाइदर रिजिड कर दो, राइट? फिर अगर कंफ्यूज हो जाओगे इस तरह से, इसको मैं ऐसे कह देता हूं, दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबल, राइट? एग्जांपल, अगर तुम्हें शेड्यूल 7 मान लो, अगर शेड्यूल 7 जिसमें जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबको जो पावर, इनका जो डिवीजन है, राइट? ठीक है ना? इन शेड्यूल 7 इफ यू विल सी, अब इसका अगर अमेंडमेंट करना हो, यस देयर, यहां पे अगर मान लो इसको अमेंड करना हो, तो यहां पे स्टेट का ओपिनियन मैटर करेगा, राइट? स्टेट विल हैव ए से, मतलब आधे से ज्यादा स्टेट, मतलब अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको क्या करें, इस बिल को जब तक वो यस नहीं कहेंगे तब तक ये अमेंडमेंट नहीं होगा, राइट? ठीक है ना? सो दैट मींस हियर व्हाट, स्टेट हैज अ से, बट हियर स्टेट का कोई से नहीं है अगर नया स्टेट बनाना है तो, राइट? ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट यू कैन से, दैट amendment is neither rigid nor flexible. So that's why people say कि Indian constitution is neither rigid nor flexible, or it is rigid in certain sense, it is flexible in certain sense, right? ठीक है? That is what about Indian constitution, right? Anyway, but that is one thing for sure, Indian constitution is not, I mean, the amendment, Indian constitution amendment जो है, that is not as rigid as it is in what, US constitution. So US constitution में amendment is very tough, right, in comparison to what, Indian constitution, right? Anyway, so it is a rigid constitution, that is what for federal setup. but India में क्या है, India में rigid constitution, India में rigid constitution केवल कब है, जब कोई ऐसा amendment हो जो फेडरल सेटअप को अफेक्ट करता हो, राइट? तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, राइट? ठीक है ना? अदरवाइज इट इज व्हाट, फ्लेक्सिबल, राइट? जैसे वही हो गया शेड्यूल 7, तो ये इसका एग्जांपल लिख सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 7, राइट? जैसे सेकंड एग्जांपल, जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, दैट इज ऑल्सो, तो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन किनका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ठीक है ना? इनफैक्ट आर्टिकल 368 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करता है, उसी को अगर उस आर्टिकल को अमेंड करना हो, ऑब्वियसली उसमें भी स्टेट का से होगा, राइट? ठीक है ना? अदरवाइज तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो आर्टिकल 368 को अमेंड कर देगी, राइट? और बोल देगी कि आगे से अब कभी भी स्टेट का से जरूरत ही नहीं है, चाहे कोई भी मैटर हो, राइट? और उसके बाद फिर जो करना हो करेगी, राइट? तो इसका मतलब इवन आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट, जो अपने आप में अमेंडमेंट के प्रोविजंस को डिस्कस करता है, अगर तुम्हें आर्टिकल 368 को ही अमेंड करना हो, वहां भी स्टेट का से क्या है, जरूरी है. सो दैट मींस व्हाट, इन दिस सेंस यू कैन से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिट व्हाट, रिजिड, राइट? Amendment, right? Independent judiciary, that is also again a feature for, and we have an independent judiciary, right? Okay. Bicameral, bicameral legislature, right? Bicameral legislature मतलब क्या? One is what, your Lok Sabha, another one is what, your Rajya Sabha, right? That is what Council of States. Council of States, right? ये हमने देखा था, ठीक है ना, Council of States के बारे में. So that means what? Bicameral का मतलब क्या है? Rajya Sabha and Lok Sabha, and these are what the representative of states, right? Definitely in India, basically, if you will say that we are a little, we are not completely federal country, right? Okay. Because definitely Rajya Sabha and Lok Sabha, who is more powerful?
लोकसभा इज मोर पावरफुल और राज्यसभा इज मोर पावरफुल? लोकसभा। हाँ? सर लोकसभा। ऑब्वियसली लोकसभा, राइट? लोकसभा। इनफैक्ट मनी मैटर्स में तो बच्चा हमने देखा था कि मनी मैटर्स में तो राज्यसभा को कोई से ही नहीं है, राइट? ठीक है ना? सो दैट मीन्स व्हाट, कि इंडिया में फेडरल सेटअप है विद सम यूनिटरी फीचर, ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है? एनीवे, सो दीज आर व्हाट फेडरल, इतना ध्यान में रखो, इसको पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। पढ़ लोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कमिंग की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, राइट? दिस इज देयर इन एनसीईआरटी एज इट इज, लाइंस एक एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि इस लाइन के बेस पे क्वेश्चन तुम्हारा निकल सकता है आराम से। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, there are two or more levels of what? Government, right? Okay, there are two or more levels of government, right? Okay, the second one, different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction, right? ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक jurisdiction होगा। okay, now the jurisdiction of the respective level of or tiers of government are specified in the constitution, right? So as I said, both the level of government, right, or more levels if it is present, they all will derive their power, right? That is from constitution, right? The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government, right? Okay. In Indian case, it is not completely true. India के केस में क्या है कि यहाँ पे कौन-कौन से फीचर्स, फंडामेंटल प्रोविजंस मतलब क्या, रिलेटेड टू फेडरलिज्म और रिलेटेड टू फेडरल सेटअप, रिलेटेड टू फेडरल सेटअप। तो जो भी फेडरलिज्म से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकती है, राइट? ठीक है ना? सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट? नाउ कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, right? And that is important, and that's why independence of judiciary becomes so important, because ultimately both the set of government is what they are deriving the power from, what? Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बेसिकली जो रीड कर रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जो बेसिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं, दे मस्ट बी व्हाट, योर इंडिपेंडेंट, राइट? सो दे मस्ट हैव व्हाट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, and the powers at different levels of government. The highest court act as umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. Now, source of revenue. See, money is very important, right? Money is very important because if you don't have money, सरकार कैसे चलाओगे, right? तभी देखोगे कि शुरू में जब जीएसटी आने वाला था तो बहुत सारे स्टेट ने खूब विरोध किया था इसका, राइट? जहां पे वैसे स्टेट्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, राइट? ठीक है ना? तो उन स्टेट्स ने, जैसे तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, इन स्टेट्स ने काफी विरोध किया था जीएसटी का, राइट? क्यों विरोध किया था, राइट? क्योंकि उनके रेवेन्यूज डिक्रीज हुए इस जीएसटी के आने से, उनके रेवेन्यू क्या हुए, डिक्रीज हुए, राइट? और अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिक्रीज होती है तो गवर्नमेंट के पास फिर पावर ही क्या बचता है? अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, राइट, तो तुम अगर कुछ करना भी चाहो तो तुम कर नहीं पाओगे, राइट? गवर्नमेंट का काम क्या है? वहां के लोगों के लिए कुछ करना, राइट? रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूल्स बनाना। आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं है, राइट? तो आप करोगे क्या? जैसे 3 टियर गवर्नमेंट जो पंचायती राज है, उसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि उनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है ना? तो वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना, उनको उनके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही पुअर रहते हैं। सो दैट इज व्हाट वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। तो उनको बोला जाता है कि उनको फाइनेंशियली आप क्या करो, इंडिपेंडेंट करो, एम्पावर करो, ताकि वो अगर कुछ करना चाहे तो उनके पास पैसा हो, वो कर सके, राइट? ग्राउंड लेवल पे वर्क। एनीवे, सो सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू विल सी दैट जो टैक्सेशन का जो एरिया है, टैक्सेशन का एरिया, कि इस सर्टेन एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, दैट इज व्हाट क्लियरली डिवाइडेड, राइट? एंड दैट यू विल फाइंड इन व्हाट शेड्यूल 7, राइट? ओके, so source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy, right? Okay, so that is very important, financial autonomy. Next, to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. So that is what the key feature of what? Federalism. Okay, so these are self explained statement, you can say. चलिए नेक्स्ट, फेडरलिज्म दो तरीके से बन सकता है, दो तरीके से। इस पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, राइट? इनफैक्ट आया भी है। फेडरलिज्म
दो तरीके से बन सकता है। एक क्या तरीका है कि स्टेट्स हैं, राइट, और वो साथ आ जाएं, राइट, मतलब दे कम टुगेदर एंड मेक अ फेडरलिज्म, वो एक फेडरल सेटअप बना ले, राइट, वो एक फेडरल सेटअप बना ले, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल है यूएस, राइट, यूएस इज एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। मतलब क्या कि वहां के जो स्टेट्स हैं वो सब साथ में आए और उन्होंने क्या किया, एक फेडरेशन सेटअप किया, राइट, ठीक है ना, दैट इज व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए तुम देखोगे कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होते हैं, ठीक है ना, वहां पे बेसिकली क्या होता है, जो स्टेट के जो राइट्स होते हैं, स्टेट के पास जो पावर होता है, दैट इज व्हाट मोर, राइट। तो यहां पे स्टेट के पास दे हैव व्हाट मोर पावर इन द सेंस मींस व्हाट, कि जैसे एक रेसिड्यूरी पावर की हम लोग बात करेंगे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, राइट, ये भी हम लोग बात करेंगे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो अगर लॉ बनाना है तो वो जो पावर होता है वो स्टेट्स के पास होता है, इस तरह के फेडरेशन में जहां पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, राइट, ठीक है ना। तो वहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, उन्होंने साथ आना सही समझा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन सेटअप किया, राइट। एग्जांपल इज व्हाट, यूएस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपका क्या है, दैट इज व्हाट इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। तो वहां पे क्या था, मतलब कि अगर मान लो सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द केस, ये तीन स्टेट्स हैं, राइट, ठीक है, इस तरह का। तो ये तीनों साथ हैं और फिर फेडरेशन बना दिया, फेडरेशन उन्होंने बना दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन से दैट कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ये, राइट, ठीक है, लाइक यूएस। बट व्हाट अबाउट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब क्या, जैसे मान लो कि ये एक फेडरेशन है, तो यहां पे क्या हुआ, इसका फर्दर डिवीजन किया गया, राइट, जैसे इंडिया में फर्दर डिवीजन किया गया था, राइट, ठीक है ना, इंडिया में फर्दर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1956 में, राइट, प्रोबेबली आपने पढ़ा भी होगा या फिर आपने सुना जरूर होगा, 1956 में, राइट, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, language played a very important role, right, in that. Okay, so उस टाइम में तो बेसिकली हुआ क्या कि इंडिया वाज एक तरह से एक यूनिटरी सेटअप है, उसके बाद उसको फर्दर तुमने क्या किया, स्टेट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट, बट दे आर स्टिल व्हाट टुगेदर। सो दैट मींस व्हाट हियर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, राइट। ओके, तो एक बार पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। द सेकंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर between the constituent states and the national government, right? Okay, like example is what, India. So India is what, that is example of what, holding together federations. तो दोनों example आप याद रखिएगा, coming together federations and what, holding together federations, और उसका example ध्यान में रखिएगा, right? और एग्जाम्पल याद रख सकते हो, इसका स्पेन है, दिस इज व्हाट योर बेल्जियम, जितना एनसीईआरटी में दिया बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। यहाँ पे तुम्हारा यूएसए है, स्विट्जरलैंड एंड व्हाट, ऑस्ट्रेलिया, राइट, ठीक है ना। तो ये तीन तीन एग्जांपल ध्यान में रखो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ओके, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो क्वेश्चंस प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, राइट, बट वंस दिस चैप्टर इज ओवर, पॉलिटी इज ऑलमोस्ट ओवर, यू कैन से, राइट, एज फार एज योर एनटीएससी इज कंसर्न। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, राइट। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अगर क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट। कैसे, यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, राइट, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है आपका, आपके पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, राइट। ओके, India has a written constitution, right? Division of power, right? Division of power that we know, right? Division of power in between what? In between legislative, in between what? Executive, right? And in between what? Your, that is what? Judiciary. This is what you can say, horizontal division of power, right? There are vertical division of power also. जैसे अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो
पार्लियामेंट हो गया तुम्हारा, राइट, एंड देन योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, state legislative assembly, right? So this division of power is what very important, right? There is a term which is mentioned in NCERT, right? The checks and balances, right? तो ये ध्यान में रखिएगा, checks and balances का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल विल बी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस चेक्स एंड बैलेंसेस. अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत लॉ बनाया, राइट, कल हो के पार्लियामेंट बनाती है एक लॉ कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट, कल से कोई इंटरनेट पे कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख सकता, राइट, पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया, राइट, बट दैट लॉ इज रॉन्ग, दैट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट. सो दैट मींस व्हाट कि पार्लियामेंट अगर वो लॉ बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी आराम से, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे, राइट, वी आर आल्सो हियर, राइट. So judiciary will basically what make that particular law null and void. अब पार्लियामेंट मान लो कोई ढंग का लॉ बनाती है, अच्छा भी लॉ बनाती है, राइट, ठीक है ना, और जुडिशरी उसमें भी टांग अड़ा दे, तो पार्लियामेंट के पास भी पावर है, राइट, पार्लियामेंट के पास भी पावर है किसको हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, राइट, इम्पीचमेंट. सो दैट मींस व्हाट, दैट इज यू कैन से दैट इज व्हाट चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे को कंट्रोल में रखना कि कोई भी मतलब बाहर ना जा पाए, मतलब एक दूसरे का, बस अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं सही करूंगा, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो तुम्हारे पास पावर है उसको सही करने का. दैट इज व्हाट यू कैन सी, दैट चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट वन एग्जांपल. And the another one is what your independent judiciary, that is important. Why it is important, independent judiciary? Because in federal setup constitution plays a very important role, और constitution का जो interpretation है वो किसके हाथ में है, तो judiciary के हाथ में, right? So that's why the independence of judiciary is extremely important, right? But if a parliament makes a wrong law and removes judges of parliament, right, see that parliament can do that, right? But you remember you are living in a democracy, right? And you have to go again. You have to go again to the people, right? ऐसा नहीं है कि तुम जुडिशरी इटर्निटी के लिए, मतलब सॉरी, तुम पावर में आ गए तो यू आर इन द पावर फॉर इटर्निटी, राइट? आफ्टर 5 years you have to go again, right? So yes, parliament can do that. किया ही है. 1975 याद करो, इमरजेंसी का टाइम था, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया, गलत था, नो डाउट. फ्रीडम ऑफ, मतलब फंडामेंटल राइट्स का तो खुलेआम वायलेशन हुआ था. क्या हुआ फिर 1977 में जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी लॉस्ट, राइट, द इलेक्शन. सो डेफिनेटली पार्लियामेंट कर तो सकती है, बट अगेन यू रिमेंबर कि पार्लियामेंट वहां पे इटर्निटी के लिए नहीं है, मतलब यू हैव टू अगेन गो फॉर द इलेक्शन, राइट, एंड पीपल आर देयर एंड पीपल आर लुकिंग एट यू, राइट. वो अलग बात है कि इंडिया में हम लोग की मेमोरी थोड़ी कम है, हम भूल जाते हैं चीजों को जल्दी. एनीवे, बट फाइन, दैट्स व्हाट. ये समझ में आया बच्चा, क्या जिसने भी पूछा था, राइट, यू गॉट द पॉइंट, उर्वी, यू गॉट द पॉइंट बच्चा? इफ नॉट, ओके फाइन. चलिए, नाउ यू सी शेड्यूल 7 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए इसको. तो शेड्यूल 7 में बेसिकली क्या है, अगर तुम देखो, पहले तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट, पावर का, राइट, ठीक है ना. सो बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर में हॉरिजॉन्टल जो था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, उसमें क्या था, तुम्हारा लेजिस्लेटिव था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था, राइट. और अगर तुम लेजिस्लेटिव में देखो, तुम्हारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो वर्टिकल में क्या था, तुम्हारा पार्लियामेंट था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, लेजिस्लेटिव मतलब क्या, लॉ बनाना. तुम पूछोगे सर पार्लियामेंट फिर किस पे लॉ बना सकता है, क्या किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? नहीं, किसी भी पार्लियामेंट, हाँ नहीं, मतलब नहीं इन द सेंस कि बना सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब इन, चलो इसको मैं ऐसे रखता हूं, आई चोज द रॉन्ग वर्ड. क्या किसी भी टॉपिक पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? यस, राइट, बट दैट इज इन वेरी रेयर केसेस, राइट. उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. बट जनरली क्या होता है, इन जनरल मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इन जनरल क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में ये वर्ड खूब यूज होता है, इन जनरल, राइट, ठीक है ना. टीचर्स विल से इन जनरल, बिकॉज वहां पे क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, राइट. मतलब जैसे तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा या पढ़ोगे, 10th तक तो ज्यादा कुछ केमिस्ट्री है नहीं, राइट. 11th में जाके पढ़ोगे, खूब सारे एक्सेप्शंस तुम्हें मिलेंगे.
तो तुम बोलोगे इन जनरल व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, राइट? इन जनरल मतलब इसका मतलब हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, राइट? राइट, या फिर टॉप से बॉटम जाते हैं तो इन जनरल इट इज व्हाट? इंक्रीजेस, इन जनरल इंक्रीजेस, मतलब हो सकता है कि डिक्रीज भी हो सकता है, राइट? सो इन जनरल का मतलब क्या है कि इन मोस्ट ऑफ द केस, बट देयर आर सर्टेन केसेस, बहुत कम है लेकिन है, जहां पे ये चीज उल्टी हो जाएगी। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो पार्लियामेंट सर्टेन एस्पेक्ट में लॉ बना सकता है, राइट? ना ईशान भी उसी पे आ रहा हूं बच्चा, आ रहा हूं। ऑल स्टेट मैटर्स, पार्लियामेंट सर्टेन मैटर पे लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सर्टेन मैटर पे लॉ बना सकता है, राइट? ठीक है ना? तो इन जो मैटर्स हैं, राइट, उन मैटर्स को एक्चुअली शेड्यूल 7 में रखा गया। सो शेड्यूल 7 में यू विल फाइंड देयर 3 लिस्ट, राइट? वन इज व्हाट योर यूनियन लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट तुम्हारी लॉ बना सकती है, राइट? ठीक है ना? सो इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट, सच एज डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, मैं फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहा था, याद करो, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, राइट? दे आर व्हाट? यूनियन लिस्ट, राइट? तो इस पे जो बेसिकली लॉ है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, राइट? तो यूनियन लिस्ट में यूनियन, स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? तो स्टेट लिस्ट में ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट, राइट? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट एनटीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, तो दैट इज व्हाट योर लोकल गवर्नमेंट, राइट? तो याद रखिएगा लोकल गवर्नमेंट, राइट? सो लोकल गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? स्टेट लिस्ट, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? स्टेट लिस्ट, राइट? सो दीज आर व्हाट? स्टेट लिस्ट, जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तुम्हारा लॉ बना सकती है। नेक्स्ट क्या हुआ? कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे कंकरेंट लिस्ट में, राइट? कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सुनना ध्यान से, मींस वहां पे यूनियन भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, राइट? दोनों लॉ बना सकता है, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्टेट का लॉ यूनियन से डिफर करता है, मतलब वो यूनियन को अपोज करता है एक तरह से, ठीक है ना, यूनियन के अगेंस्ट जाता है, इन दैट केस यूनियन वाला जो लॉ होगा दैट विल गेट मोर प्रोमिनेंस देन स्टेट वाला लॉ, ठीक है ना? तो इसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? ठीक है, सच एज एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, राइट? आपको ये याद रखना है, ठीक है ना? ये जो एक पॉइंट यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ये that can give you one question, right, in NTSC, okay? So this is important, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना? both the union as well as the state, आ रहे बच्चा, और भी आ रहे हैं, don't worry, आ रहे हैं, we are coming on that also, right? Just on the next slide that is there, union as well as the state government clause on the subject mentioned in this list, right? If there, now you read this point, if the laws conflict with each other, the law made by the union government will what? Prevail. तो यूनियन गवर्नमेंट का से ज्यादा है कंकरेंट लिस्ट में, वो तब जब उनके लॉज एक दूसरे को क्या करे? कंफ्लिक्ट करे, राइट? अब सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1950 में, राइट? ठीक है ना, मतलब इन फोर्स आया 1950 में, राइट? ओके, उस टाइम में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं थी, आईटी जैसे सब्जेक्ट्स उस टाइम में तो थे ही नहीं शेड्यूल 7 में, क्योंकि पिक्चर में ही नहीं था। तो वैसे सब्जेक्ट्स जो उस मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, और कुछ नए सब्जेक्ट्स जो आते हैं, राइट, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, राइट? ठीक है ना? So that means, what about subjects that do not fall in any of the 3 list? उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, राइट? ठीक है ना? So that is what? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे जो पावर है, this line is important, can give you one, question. According to our constitution, the union government has the power to legislate on this residuary subject. केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ओनली यूनियन गवर्नमेंट, राइट? ओनली। तो इंडिया में देखो, इंडिया में रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे किसका होल्ड है? यूनियन गवर्नमेंट का। बट अगर तुम यूएस में चले जाओ, राइट, इफ यू गो इन यूएस, देयर यू विल फाइंड इन यूएस बेसिकली यू विल फाइंड दैट जो आपका रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है उस पे जो लॉ है वो स्टेट बनाती है, लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास है। इन यूएस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे
जो लॉ मेकिंग पावर है, राइट, दैट इज विथ व्हाट, स्टेट, नॉट यूनियन, राइट, ठीक है ना। और वो इस तरह से भी देख सकते हो कि वो फेडरल सेटअप कैसे फॉर्म हुआ है, वहां पे स्टेट साथ आए, दैट इज व्हाट कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर सेटअप में यू विल फाइंड दैट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट इज विथ व्हाट, स्टेट, but holding together में you will find that residuary subject is what, with union. So in holding together, union is a bit what more powerful, you can say, right, okay, than in the case of what, coming together, right. Now the question we were asking that now you see this setup and what actually conclusion you draw from this, right, okay. Originally union list में 97 subjects थे, आज की डेट में 98 है। ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं, आज की डेट में कितने हैं, 59 है। एंड ओरिजिनली कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं, आज की डेट में 52 सब्जेक्ट हैं। टेल मी दिस डाटा व्हाट इट सजेस्ट, इज इंडिया गोइंग टुवर्ड्स फेडरल सेटअप और इज इंडिया गोइंग टुवर्ड्स यूनिटरी सेटअप? व्हाट डू यू थिंक लुकिंग एट दीज डाटास? क्या बोलते हो? सर यूनिटरी। यूनिटरी ना, मतलब तुम क्या कर रहे हो एक तरह से, तुम स्टेट का पावर ले रहे हो भाई। Exactly, that means you are shifting the equilibrium of power towards center, right? Now more subjects are what? तुम बोलोगे सर एक ही सब्जेक्ट तो बढ़ा यूनियन लिस्ट में, ठीक है, एक सब्जेक्ट बढ़ा, सी द कंकरेंट लिस्ट, वहां पे भी तो यूनियन का ही है, से, राइट, अल्टीमेटली तो यूनियन के पास ही है ना, अगर यूनियन चाहे तो, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट, यस, दिस डाटा इटसेल्फ सजेस्ट दैट you know the powers is a bit shifted towards what, union government in Indians, right, in the case of what, India, right, okay. So just you remember, कम से कम इतना याद रखो, right, कि सबसे ज्यादा जो subjects हैं they are what, union list, then it is what, your state list, and then it is what, your concurrent list. कम से कम अगर values याद ना रखो, values मेरे ख्याल से आज तक तो मैंने देखा नहीं पूछते हो, but maybe just at least ये याद रखो कि सबसे ज्यादा किसमें है, right, okay. Now the question was what, एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था कि स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक, राइट, तो ये ध्यान में रखिएगा, राइट, ओके। सो वी विल एंड द क्लास हियर, राइट, जस्ट पार्लियामेंट्री इसको पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिसन एंड देन यू कैन लीव, जस्ट लिसन दिस पॉइंट, राइट। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल के पास पावर है, राइट, लॉ बनाने का, बट इन सर्टेन केसेस सेंट्रल कैन मेक लॉ ओवर व्हाट, स्टेट लिस्ट आल्सो, मतलब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है इन सर्टेन केसेस, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन व्हाट, द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो इवन in the limited sphere of authority allotted to them, states, the states do not have the exclusive control on what, state list. The parliament is empowered to legislate on any subject of the state list if there is a clause here, right, if Rajya Sabha passes a resolution, Rajya Sabha means what, council of states, they have to pass a resolution, right, to that effect in the national interest. So national interest mein there is a possibility that parliament can make what, laws on द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। वैसे जनरली क्या होता है, यूनियन जो तुम्हारे लिस्ट होंगे उस पर यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब, ठीक है ना, जो तुम्हारा स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट, और जो कंकरेंट है उस पर दोनों बना सकते हैं, बट अगर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो लॉ है दैट विल प्रिवेल, राइट, और रेसिड्यूरी का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट इन यूएस इट इज विथ व्हाट, स्टेट्स, राइट। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि फेडरलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, राइट, previous year mein. So we'll do all the questions, right, we will see, and we will be able to solve almost all the questions, don't worry, I've already covered all the aspects, okay. And then jo bacha usme zyada kuch hai nahi, ab polity is almost, you can say, over, right, okay. So we will end the class here. Thank you so much for your participation and presence. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye 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 bye, chalo.